चंद्राय राधाय गिरिधारिणीं व्रजाय व्रजवल्लभ भक्ते वत्स नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अखिल सामृतमूर्ति तत्श्रीमरुचिरुद्रौ तारकापालिं कलितो स्वामा ललितो राधाप्रियां विधु जयति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम जयति श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विजयते तमम्। श्री भक्तिरसामृत सिंधु दक्षिण विभाग विभावाक्य लहरी श्रीकृष्णेर अत्याद्भुत गुणावली आमादेर आलोच्य विषय। गतकाल आलोचित हयेछिल अष्टादश महादोष, किन्तु भगवत चरित्रे संचारी भावे तादेर सेवार अवसर। भगवानी अपगुण नाई, जा अपगुण बोले मने हय ए जगतेर भितरे जे अपगुण कृष्णेर चरित्रे ताई गुणवत प्रकाशित है। निरंकुश ऐश्वर्य भगवत अवतार मात्रई भक्त सम्बन्धे उत्पन्न महादेव रसपोषक बलिया निरूपित हইলে सर्व अवतार हইতে एमनकि अवतारी प्रथम पुरुष हইতেও स्वयं भगवान ब्रजेन्द्र नंदने मा माधुर्य राशि कथित है। अष्टावन्न कीर्तन्ते सद्गुणत्वेन विश्रुतम् मंगलालंकृयारूपम् सत्त्वभेदास्तु पौरुषम् शोभाविलास माधुर्यं मंगलं स्थज्य तेजसी ललितोदाज्यमित्येते सत्त्वभेदास्तु पौरुषा। अतःपर सद्गुण बलिया प्रसिद्ध मंगल स्वरूपेर सौंदर्यभूत पुरुषगत अंतःकरण वृत्ति विशेष रूपे 8टी गुण निरूपित हইতেছে। ওরা শোভা বিলাস माधुर्य मांगल्य स्थैर्य तेज ललित एवं औदार्य।
পূর্বে 64 গুণের পরিচয় আমরা ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধু থেকে জানতে পারিয়াছি। পুনরায় কৃষ্ণের চতুর্বিধ নায়ক গুণ লক্ষণ জানিলাম। এরপরে বলছেন আরো কিছু সদ্গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ মঙ্গলের আলয় স্বরূপ, সেগুলি কি? সেগুলি তাদের সংখ্যা হল 8। তারা হলো শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজ, ললিত এবং ঔদার্য। এগুলো সদ্গুণের মধ্যে গণ্য। শোভা কি? শোভা কাকে বলে? প্রথমেই সংজ্ঞা করেছেন নিচে দয়াধিকে স্পর্ধাম সৌর্যোৎসাহৌচ দক্ষতাম সত্যঞ্চ ব্যক্তিমায়াতি যত্র শোভেতি তং বিদুম। যে মঙ্গল অলঙ্কার হেতু কিংবা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিতে নিচু জনের প্রতি দয়া, অধিক মান্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্ধা, শৌর্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে শোভা বলা হয়। কৃষ্ণের মধ্যে এই শোভাগুণ বর্তমান। আমরা কি প্রমাণ পাই? কি করে বুঝলাম যে কৃষ্ণের মধ্যে এই শোভাগুণ আছে? প্রথমে বলেছেন যে অন্তঃকরণের যে ভিত্তিতে নিচুজনের প্রতি দয়া, অধিক মান্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্ধা, বীরত্ব, উৎসাহ, দক্ষতা ও সত্য প্রকাশিত হয়, তাকেই পণ্ডিতগণ শোভাগুণ বলিয়াছেন। যথা উদাহরণ দিচ্ছেন, এর আগে নিজের প্রতি দয়া, দয়া ধর্ম বলেছেন। শৌর্য, সুর, মান্যমান কৃত, এ সমস্ত গুণ বর্ণিত হলেও দক্ষ, সত্যব্রত, এ সমস্ত গুণ বর্ণিত হলেও বহু গুণ মিলে যে আরেকটি গুণ সৃষ্টি করে তার পরিচয় দিতেছেন। তাহলে নিচজনের প্রতি দয়া, অধিক মান্য, হামরা বুদ্ধিতে চলছে যে তার প্রতি স্পর্ধা, বীরত্ব, উৎসাহ, দক্ষতা, সত্য, এগুলি শোভা পাচ্ছে। যেখানে সেইটি শোভা লক্ষণ। যথা সদ্গদ্ধং সংবিদচ্ছু ব্রজভুবি কদনং সুষ্ঠু বিক্ষাতি বৃষ্টাম নিচানলক্ষ্য পশ্চান নমচি রিপু মুখান নূঢ় কারুণ্য বীচি অপ্রেক্ষ্য সেন তুল্যং কমপি নিজ রুষা অপর্যাপ্তি পত্রম অত্র প্রজাপ্তি পত্রম বন্ধুনানন্দ ঈশন উদঘরত হরি সত্য ছন্দ মহাদ্রিম। সগদরা সন্দে রূপবাদ বর্ণন করিলেন। ইন্দ্র প্রেরিত অতি বর্ষায় ব্রজবাসীগণের কদর্তনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিলেন।
কিন্তু পরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে অপকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া করুণা তরঙ্গের উদ্রিকে ত্রিজগৎকে স্বীয় ক্রোধের প্রতিপক্ষ পাত্রহীন জানিয়া সত্যসন্ধ শ্রীহরি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন ব্রজ রক্ষার জন্য। প্রথমেই তার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। ব্রজরাজ ইন্দ্র ব্রজবাসীদের উপর ক্রোধার্থনা করছে, আমি স্বর্গ ধ্বংস করে দেব। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তা করলেন এসব অপকৃষ্ট দেবতা, যাদের মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই, সভ্যতা নেই, ধর্মজ্ঞান নেই, তাদের প্রতি ক্রোধ করে কি লাভ হবে? আর ক্রোধের পাত্র না, এরা দয়ার পাত্র। অতএব করুণার উদ্রেক হলো। ক্রোধ করে তাদের কোনো অনিষ্ট না করে ব্রজবাসীদের রক্ষা কল্পে সত্যসন্ধ শ্রীহরি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাকে সমস্ত প্রাণীর ভয় থেকে রক্ষা করি। অতএব শ্রীহরি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিলেন। শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ সর্বসাধারণভাবে ৬৪ গুণের উল্লেখ করিলেও পরক্ষণেই তিনি নায়িকা গুণ বর্ণন করেছেন। নায়কের গুণ বর্ণনে বিশেষ বিশেষ গুণগুলো, বিশেষ করে তিল ললিতাদি নায়ক গুণের মধ্যে বেশ কিছু গুণ প্রকাশিত হলো, ওইগুলি সমবেতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুনরায় তিনি ৮টি গুণ বর্ণন করেছেন, যে গুণের মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ আছে। ক্ষমা এবং দয়া, ক্রোধ ও দয়া, ক্রোধ ও করুণা, এ দুটি এক জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। কোথায় বললেন এটা শোভা লক্ষণ। অপেক্ষ সেন তুল্যম কমপি নিজ রুষা অত প্রজাপ্তি পত্রম। যখন তিনি দেখলেন আমার রোষের পর্যাপ্তি পাত্রে জগতে কেউ নাই, অতএব বন্ধুগণকে আনন্দিত করবার জন্য সত্যসন্ধ শ্রীহরি গোবর্ধন পর্বতকেই ধারণ করিলেন। অত বিলাস লক্ষণ বলেছেন, বিষবৎসেব গম্ভীরম গতি ধীরঞ্চ বিক্ষণম সস্মিতঞ্চ বচো যত্র সবিলাস ইতি যতেন। বিলাস কাকে বলে? যে অবস্থায় বৃষভবৎ, বৃষভবৎ, বৃষভ মানে ষাঁড়, গম্ভীর গতি এবং স্থির দৃষ্টি এবং সহস্র বচন প্রয়োগ হয়, তা বিলাস বলিয়া অভিহিত হয়। কেউ কোনোদিন এসব শুনেছেন? যশোশাস্ত্রে কৃষ্ণের গুণাবলী বললে একটা বিলাস আছে, কৃষ্ণ বিষয়ে ভাবের দ্বারা চিত্তের একটা ভাব, সেটা বিলাস লক্ষণ। চৈতন্য চরিতামৃতে
বিলাস লক্ষণ বলেছেন চতুর্দশ। গতিস্থানাসনাদীনং মুখো নেত্রাদি কর্মণম তাৎকালিকং তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসো প্রিয় সঙ্গজম। প্রিয় সঙ্গ হইতে উৎপন্ন, প্রিয় সঙ্গম স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেই সময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয় তাকেই বিলাস বলে। রাধা বসে আছে কিংবা বৃন্দাবনে যায়, তা সম্বিধি কৃষ্ণ দর্শন উপায় দেখিলেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ, সেই বৈলক্ষণের নাম বিলাস ভূষণ। উজ্জ্বল নীলমতি বিলাস লক্ষণ এরকম বলেছেন। তাহলে আমরা ভালোই বুঝতে পারলাম প্রিয় সঙ্গ হইতে উৎপন্ন যে ভাব, প্রিয় সঙ্গম স্থানে গমন ও অবস্থিতি প্রভৃতি তৎকালে মুখনেত্রাদি যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয় বিশেষতা, তাকে বিলাস বলে। লজ্জা হর্ষ বিলাস সম্ভ্রম বান্ম ভয় এত ভাব মেলিরা যায় চঞ্চল করাই। গোবিন্দ লীলামৃতে বলেছেন বিলাসের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল। তার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প আচ্ছাদিত হইল, নয়নতারাদায় বিস্ফারিত হইল, চঞ্চল বক্র হইল এবং বিলাসাক্ষ অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণ সুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এটা রাধার সম্বন্ধীয় বিলাস। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিলাসগুণ এরকম বর্ণনা করলেন। যে অবস্থায় দৃশ্যপথ গম্ভীর গতি হয়, স্থির দৃষ্টি, সহস্য ভজন প্রয়োগ হয়, তাই বিলাস। যেমন মাল্য শ্রেণাম অবিনয়বতী মন্তরাঙ্গনস্য দৃষ্টিং বাদন্নানুম দীপইব ভুবং বিক্রমাড়ম্বরেণ ভাগারম্ভে স্মিত পরিমলাই খালয়ন মঞ্চ কক্ষম তঙ্গে রঙ্গস্থল পরিসরে সার সাক্ষ সসার। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মল্লদিকের প্রতি বিনয়ের জন্য স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বিক্রমের সহিত হস্তিবাদ ভূকম্পন করাইয়া অথচ বাক্যারম্ভে হাস্য পরিমালে রঙ্গমঞ্চকে প্রক্ষালন পূর্বক অত্যুচ্চ রঙ্গমঞ্চে মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিলাস লক্ষণ বলছেন এখানে কৃষ্ণের, ওটা তো রাধার বিলাস লক্ষণ শুনলাম, কৃষ্ণের বিলাস লক্ষণ। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মল্লদের দর্শন করে তিনি বিনয় শূন্য দৃষ্টিপাত করলেন।
বিক্রমের সহিত হস্তিবৎ ভূকম্পন করাইয়ে রঙ্গমঞ্চে উঠিলেন। বাক্যারম্ভের দ্বারা রঙ্গমঞ্চকে প্রক্ষালন পূর্বক অতি উচ্চ স্থানে যেয়ে উপস্থিত হলেন। এটার নাম বিলাস। এটা দ্বারকায় হয়েছে না মথুরাই রঙ্গমঞ্চে শোভা প্রকাশ পেয়েছিল। বলার উদ্দেশ্য কি, কৃষ্ণের তো বিলাসের লক্ষণ থাকবে। মধুর রসে নায়কের নায়িকার 20টা অলঙ্কার আছে, তার মধ্যে একটা শোভা অলঙ্কার, বিলাস একটি অলঙ্কার, মাধুর্য একটি অলঙ্কার। এগুলি যেমন নায়িকাতে থাকে তেমনি নায়কেও থাকে। কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, তার জন্য তার মধ্যে এই লক্ষণগুলি থাকেই থাকে। তার মধ্যে একটি বিশেষ সদ্গুণ হলো মাধুর্য। এই মাধুর্য কি? তন্মাধুর্যম ভবেৎ শত্রু শ্রেষ্ঠ দেশ প্রিয়নীয়তাম। যে বৃত্তি হইলে শ্রেষ্ঠাদির স্ফুরণীয়তা জন্মে তাকে মাধুর্য বলা হয়। যে বৃত্তি হইলে শ্রেষ্ঠাদির স্ফুরণীয়তার জন্মে শ্রেষ্ঠার স্পৃহা জাগে তাকে মাধুর্য বলা হয়। সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠাদির চারুতা, সেখানে বলেছেন মাধুর্য। এখানে বলছেন শ্রেষ্ঠাদির স্ফুরণীয়তা, সেটা হলো মাধুর্য। যথা কৃষ্ণের এই গুণ, এর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কদম্বৈ প্রালম্বং প্রবলিত বিলম্বং বিরচয়ন প্রপন্নায়ামগ্রে মীরদুহিতুর্তীর্থ পদবিং কুরঙ্গি নেত্রায়ং মধুরিপুর পঙ্গং বিকিরতি। মধুরিপুর পঙ্গং বিকিরতি। একদা যমুনার প্রশস্ত তটভাগে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণবর্ণ কদম্ব পুষ্প সমুদ্রা এক ঋজু লম্বিত মালা এমনভাবে রচনা করিতে লাগিলেন, তাতে মালা গাঁথিতে যথেষ্ট বিলম্ব হয় এবং এই ছলনায় তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন। ইতিমধ্যেই মৃগনেত্রা শ্রী রাধিকা যমুনা ঘাটে উপস্থিত হইলে মধুসূদন হরি তার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। এটা প্রেম বিলাস। কোথায় যে মালা গাচ্ছে, যমুনার তটে। সেখানে বলছি এমন ভাবে মালা গাচ্ছে, মালা গাতেই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। নিজে ইচ্ছা করি একটা মালা নিচ্ছেন, মালার ফুলটা দেখছেন আর ফুটাচ্ছেন। উদ্দেশ্য মালা গাতার বাহানা করে যমুনার তীরে অবস্থান করবেন, কিন্তু উদ্দেশ্য রাধার দর্শন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি মালা গাঁথতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী রাধারানী যমুনার তটে উপস্থিত হলে শ্রীহরি তার প্রতি মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। এটার নাম চারুতা।
মাধুর্য, এগুলো আমার রাধারানী দেখিয়েছেন। সূর্য পূজা করে রাধারানী যখন জটিলার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন, আর কৃষ্ণ দর্শন হবে না। কৃষ্ণ দর্শন কখন হবে ঠিক নাই। শ্রীমতী রাধারানী সঙ্গে সঙ্গে গলার মুক্তা মালাটা টান মেরে ছিঁড়ে দিলেন, আর মালার মুক্তার মালার মুক্তাগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সখীরা আগে চলছে, তো বলছে সখী আমার মুক্তার মালাটা ছিঁড়ে গেল যে। বলে চলো, বলে না এগুলো আমার অতি প্রিয়, এগুলো আমি কুড়িয়ে নিই। ওই একটা একটা করে কুড়াতে লাগলেন। উদ্দেশ্য আমি অনুক্ষণ অধিকক্ষণ কৃষ্ণকে দর্শন করব। কৃষ্ণের ললিত বিলাস এই মাধুর্যের লক্ষণ এখানে বলা হলো, আর সেখানে রাধারানীর মাধুর্যের কথা বলা। চেষ্টা এই প্রকারের উদিত হয়। চেষ্টাদের স্পৃহনীয়তা, কারণ এমন একটা বৃত্তি এসে যায়, প্রিয় বিষয়ক বৃত্তির উদয় হলে এইগুলি প্রকাশ পায়। এগুলো বেশি বলবান নয়। সাধক অবশ্য বুঝতে পারেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহাটা কি। তিনি কৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্তির জন্য, রাধা সঙ্গ প্রাপ্তির জন্য মালাগাতার ছলনা করে যমুনার তীরে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতেছেন। कृष्ण के लिए, राधा के लिए कृष्ण जी इंतजार करते रहे। माला ग्रंथन की बहाना से जमुना किनार में इंतजार करते रहे। ऐसे ही मुक्ता को लेने के लिए, मुक्ता के बहाना से राधा जी भी मार्ग में ऐसे एक मधुर चेष्टा करते रहती है। माधुर्य लक्षणটি এরকমই। তার একটা বিশেষ গুণ মাঙ্গল্যম, মাঙ্গল্যম জগতামেশু বিশ্বাসাস্পদতামতম। সমস্ত জগতের বিশ্বাসপাত্রতাকেই मांगल्य बोले। कृष्ण का विशेष गुण है मांगल्य गुण। समस्त जगत के एकमात्र विश्वास के पात्र है, वही श्री कृष्ण ही समस्त जगत की विश्वास के एकमात्र पात्र है। इसलिए वो गुण का नाम है मांगल्य। जता अनाजन्नो घराभीति भगवतो दारर्गला दानवाम रक्षी कृष्ण इति प्रमत्तमभितो क्रियाचुरक्तासुराम साक्षी तेति गाताश्च चिन्तोज्झितम् के विश्वम्भरो न तदंघ्रि जुगुले विश्वम्भितं वेदिरे।
হরিতে অনার্য থাকিতে পারে না, এই বুদ্ধিতে দৈত্য সকল দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাস করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্তা, এই বুদ্ধিতে দেববৃন্দ চতুর্দিকে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়াসক্ত হইয়াছেন। অন্তর্যামী শ্রীহরি আমাদের ভক্তি জানেন, এই জ্ঞানে ভক্তবৃন্দ চিন্তা পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং হে বিশ্বম্বর, তোমার চরণ যুগলের প্রতি কি বিশ্বাস না রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সকলেই বিশ্বাস রাখিয়াছেন। গোবিন্দেতি মঙ্গলম। তাই মাতাজি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय गोविंद। अब जी इधर आओ, बैठो। भगवान मांगल्यगुण का निदान है। मांगल्यगुण किसका कहते हैं? समस्त जगत की एकमात्र विश्वास के पात्र है श्री कृष्ण। इस गुण का नाम है मांगल्य। रघु गोस्वामी पाद ने भक्ति स्वामी दुष्यंत में कृष्ण का गुणावली वर्णन प्रसंग से 67 गुण का उल्लेख करते हुए भी फिर 4 प्रकार नायक गुण, उसके बाद 8 प्रकार जो विशेष सद्गुण जो ही वर्णन कर रहे हैं। शोभा है, शोभा एक गुण है। श्रृंगार रस में नायिका के एक विलास, एक अलंकार है शोभा। कांत के विलास से शोभा प्रकाशित है। हेला, शोभा, कांति, ये सब नायिका गुण है। परंतु कृष्ण चरित्र में भी शोभा गुण है। नीचे जन के प्रति दया, जो ईश्वर मानने वाला, इंद्रादि देवता के प्रति स्पर्धा, वीरत्व, उत्साह, कार्यदक्षता, सतता, दृढ़व्रत, ये सब गुण जहाँ विराज करते हैं, उस सब गुण के सम्मिलन से एक नया गुण पैदा होता है जिसका नाम है शोभा। तो वर्णन करते हैं, गोवर्धन पूजन के बाद इंद्र जी कुपित होके जब बारी वर्षण करने लगे, उत्पात करने लगे, भगवान श्री कृष्ण स्वर्गों को ध्वंस करने के लिए एक संकल्प लिया था। फिर उन्होंने सोचा कि देव तो निकृष्ट है, कि हमारा क्रोध के पात्र नहीं है, परंतु ये दया के पात्र है। इस प्रकार विचार करके क्रोध संबंधन किया। फिर ब्रजवासी को रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भक्तद्रोही इंद्र के प्रति क्रोध, परंतु परीक्षण सस्ती है, ये क्रोध के पात्र नहीं है, क्योंकि इस संसार में
उनका क्रोध के पात्र दूसरा कोई नहीं है। अपेक्षो अप्रेक्षो चेन तुल्लं कमपि निजरुषाम आत्रो प्रजाति पत्रम। अपना रोष क्रोध का एक प्रतिपक्ष पात्र संसार में आओ, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करके हमने गोवर्धन पर्वत धारण किया। ये तो स्वागुण है, परंतु मांगल्य गुण है जे श्री हरि में अनाज्य भाव नहीं है। सर्व जगत के एकमात्र विश्वास के पात्र स्वरूप है। दृष्टांत में कहते हैं हरि में अनाज्य भाव नहीं है। इस बुद्धि से दत्तगण द्वार खुल के निवास करते हैं। द्वार बंद रखते हैं किसके लिए? शत्रु के लिए। तो भगवान तो शत्रु नहीं है, वो मानते ही हम अन्याय जब करते हैं तब कृष्ण जी हमें शासन करते हैं, लेकिन कृष्ण में अनाज्य भाव नहीं है। इस प्रकार बुद्धि से द्वार खोल के निवास करते हैं। फिर श्री कृष्ण আমাদের রক্ষাকর্তাই বুদ্ধিতে দেববিন্দু চতুর্দিকে প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়াসক্ত হয়েছেন। श्री कृष्ण चंद्र हमारे रक्षक है। इस प्रकार बुद्धि से देववृंद इधर उधर घूमते हैं, क्रीड़ा सकते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। वो जानते ही भगवान है, भगवान में विश्वास है। असुर का विश्वास है, देवताओं का विश्वास है, मनुष्य के लिए क्या है, भक्तन के लिए क्या बात बताते हैं। भक्त लोग जानते हैं भगवान तो अंतर्जामी है, मेरे अंतर जानते हैं। इस प्रकार भावना से वो केवल भगवान ध्यान में ही रहती है। इसलिए कहते हैं एक भक्त तो भगवान हे विश्वम्भर, आपके प्रति विश्वास संसार में ऐसे कौन है जो नहीं रखते हैं? सब लोग ही आपके प्रति विश्वास रखते हैं। मंगल गुण निदान। भगवान में अनाज्य चरित्र नहीं है। असुर लोग भी मानते हैं, परंतु हम देखते हैं शिशुपाल नहीं मानते। शिशुपाल कहते हैं अन्याय है। कृष्ण अन्याय चरित्र को अधिकारी है। वो गवत क्या, नारीवत क्या, और काक की भांति एक राष्ट्रीय यज्ञ में अग्रपूज्य होंगे। परंतु एक विचार है, वीर रस को प्रकाशित करने के लिए कभी कभी कृष्ण की इच्छा से ये शिशुपाल दंत्र वक्र में ये भाव पैदा होती है, ये रस को पुष्ट करते हैं, वीरत्व को प्रकाश करते हैं। परंतु कृष्ण के वीरत्व के समक्ष में ये वीरत्व अति तुच्छ है। साधारण नीति से सब लोग भगवान के प्रति विश्वस्त है। जो को नहीं मानते हैं, मनो किस कारण है इसमें। कंस हर वक्त कृष्ण को ऐसे मानते हैं, शत्रु ही मानते हैं। जब शत्रु भाव है में तो गुण दर्शन नहीं होता है। शत्रु दशदर्शी है, मित्र गुणदर्शी है। निरपेक्ष
समदर्शी है। जो निरपेक्ष है वो गुण दोष दोनों ही देखते हैं, परंतु मित्र केवल गुण ही देखते हैं। इसलिए मित्र अथवा शत्रु ये विचारक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में पक्षपात दोष है। परंतु जो निरपेक्ष है वो सही विचार कर सकते हैं। शत्रु भाव कहां से पैदा होती है? जब स्वार्थ हानि होता है तब शत्रु भाव पैदा होते हैं। ये जगत संसार में शत्रु कौन है? सभी तो जीव कृष्ण का दास है, परंतु भगवान असिंत शक्ति से किसी के अंतर में शत्रु भाव दे दिया। मित्र भाव को प्रकट करने के लिए, विषय को प्रकाश करने के लिए जैसे दिन रात का समावेश है, ऐसे ही भगवत चरित्र को प्रकाश करने के लिए आसुरिक भाव ही वीर रस के अंतर्गत है। भगवान कभी कभी वीर रस आस्वादन करते हैं, शत्रु के साथ तो वीर रस आस्वादन करते हैं, परंतु मित्रों के साथ भी आस्वादन करते हैं। हम देखते हैं जब गोचरण गाय चरण में जाते हैं तो कृष्ण बंधु के साथ ऐसे युद्ध करते हैं। फिर भी कृष्ण जी जब प्रयुषी से वीर रस आस्वादन करने की इच्छा करते हैं तब उनके साथ भी फाइट करते हैं। इसके कारण ये वृंदावन में गोवर्धन के साइड में एक स्थान है जिसका नाम रनवाड़ी वहाँ पर राधा कृष्ण दोनों युद्ध किए। भक्त तो भगवान भी युद्ध करते हैं, असुर भाव से युद्ध करते हैं तो अलग विचार, भक्त होकर भी युद्ध करते हैं। क्यों? भगवान को सुखी बनाने की। राधा जी कृष्ण के ऊपर लाट लगाते हैं, दृष्टि लगाते हैं, किसके लिए? जो प्यार प्राणों से प्यार है उनके प्रति इस प्रकार व्यवहार तो कृष्ण जी मानते हैं। उनकी इच्छा शक्तिमान तो भगवान ही है। उनकी इच्छा के अनुसार जैसी इच्छा होती है, जैसे अंतर की इच्छा हाथ मुंह आंख में प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही जब भगवान जिस प्रकार इच्छा करते हैं वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनमें उस प्रकार भाव भी प्रकाशित होते हैं। इसलिए भगवान जब वीर रस आस्वादन करने की इच्छा करते हैं तब कोई ना कोई भक्त के अंतर में उस प्रकार वीर भाव प्रकाशित होता है। क्या मालूम है? समझ लिया? ये तो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो भक्त भी मौजूद है। जैसे वैकुंठ का पार्षद प्रधान जय विजय जब नारायण ने वीर रस आस्वादन करने की अभिलाषा करी, उसी समय सप्तम द्वार से जय विजय देखते ही मालूम उनके मालूम हुआ जो भगवान वीर रस आस्वादन करने के लिए इच्छा की है, वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुझे शत्रु बना ले, मेरे साथ हमारा साथ युद्ध करने की से एक शत्रु भाव तो चाहिए। मित्र के साथ युद्ध नहीं होते है, अच्छा नहीं लगते है। तो इसी समय चतुष्सन जब आ गई
भगवान की इच्छा से द्वारपाल दारोध किया, मना किया। उसी कारण उन्होंने कपित होके, गुस्सा होके श्राप दिया, असुर बनो। बस भगवान भी कहते 3 जन्म के बाद इधर से आना। गुस्सा के साथ जन्म लिया, इसलिए असुर बना। 3 जन्म में भगवान उनके साथ वीर रस आस्वादन करते हुए जब इच्छा पूर्ण हुआ तो उस समय भगवान उनको फिर अपना धाम में ले गया। इन्हें तो है विचार, कोई बताते हैं जगत संसार भगवान के लिए रंगमंच सर्वाई स्टेज है। भगवान लीला करते हैं, प्रियानुकरणं लीला, जो कुछ करते हैं, जैसे पक्षियों का अनुकरण करते हैं तो वो भी लीला है, पशु का अनुकरण करते हैं वो भी लीला है, और वीर का अनुकरण करते हैं, ईश्वर का अनुकरण भी करते हैं। इसलिए एक वृंदावन के नजदीक है सट्टिकरा में भगवान वहां पर नारायण रूप धारण किया था। सीधाम गरुड़ों की 12 दिन तक वो कृष्ण का वाहन किया था। फिर उन्होंने दूसरे स्थान पर शेषशाही रूप धारण किया था। एक प्रियानुकरणम, भक्तन के लिए राधा जी और सखिया जब इच्छा की खीरशाही रूप दर्शन करने की, तो उसी समय भगवान अपने खीरशाही रूप को प्रकट किया। हम जानते हैं कि मंगल लक्ष्य नहीं है, भगवान सबके विश्वास के पात्र है। रूप गोस्वामी पद ने एक गुण को इस प्रकार प्रकाश किया। कभी भक्ति रसामृत सिंधु पठन किया कि एक पुस्तक लेना जरूर। भक्ति रस को कैसन करने के लिए तो भक्ति रसामृत सिंधु है। भक्ति रस का विचार लौकिक, कौलिक और व्यवहारिक भक्ति नहीं है, परंतु शास्त्रीय भक्ति ही भक्ति है। भक्ति का लक्षण, वैशिष्ट, जो भक्ति के 6 वैशिष्ट। पहले वैशिष्ट का नाम है क्लेश अग्नि। भक्ति सारे क्लेश को खत्म कर देते हैं। द्वितीय गुण है सुविधा, शुभ विधान करती है भक्ति। दूसरा गुण है मोक्ष लुब्धकृत, भक्ति में इतना ही सुख है जिसके पास मोक्ष सुख तुच्छ बन जाती है, सुदुर्लभा, परंतु ये भक्ति सुदुर्लभ है। चौथा गुण तो सुदुर्लभ है। 5वां गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा, अत्यंत आनंदमयी है। 6 गुण है वो भगवान को भी आकर्षण करते हैं। भक्ति सर्वाकर्षक भगवान को भी आकर्षण करते हैं। ये विचार तो अति उत्तम विचार है। इसलिए भक्ति रस का विचार, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का जो साध विलास, उसका परिचय अच्छे तरह ये भक्ति रसामृत सिंधु में आई। भगवान के गुण का परिचय, फिर रस और कुरस, रसवास का स्वरूप क्या है,
हर समय रसोवास ना संपूर्ण रस नहीं होते, क्यों? तो रसोवास विचार भी आई। इसलिए ये सब गुण सुनते ही कृष्ण के प्रति भाव लगते हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, जिनके प्रति कुछ भाव ज्ञान नहीं है, उनके प्रति भक्ति नहीं हो सकता है। पिताजी बताते हैं भक्ति करो, डर से भक्ति करते हैं, परंतु प्यार से भक्ति करने में अच्छा भाव लगता है। अच्छा लगता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जब अच्छा नहीं लगता है वह पर उपदेश चलते हैं, निर्देश चलते हैं। तीन भाव है, उपदेश, आदेश और निर्देश। कृष्ण भजन करे, इसका उपदेश कहते हैं। अब सब कृष्ण भजन करे, ये उपदेश है। तुम कृष्ण भजन करो, मंगल होगा, तो उपदेश है। भूलो मत, ये तो निर्देश है। कृष्ण को भूलो मत, भक्ति को छोड़ो मत, ये तो निर्देश है। निषेध युक्त उपदेश ही निर्देश है। तो श्रीमद् भागवत ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत चमत्कार विचार है। वो विचार से चित्त आनंदित होते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु को जरूर अध्ययन करें। गोविंद मंगलम। भगवान प्रसन्न हो जाए। गोविंदेति मंगलम, गोविंदेति सुंदरम, गोविंदेति शोभनम, गोविंदेति पावनम, गोविंदेति जीवनम, गोविंदेति भूषणम, गोविंदेति दूषणम, गोविंदेति सर्वस्वम। सत्य कृष्ण जी अब तो सत्संग करते हैं, तो मुझे कुछ